Good morning, student. This is Pinky Banerjee. Today we will discuss the properties of Laplace transform. In the last two lectures, we have discussed about the introduction of Laplace transform and the ROC of Laplace transform, that is region of convergence. Today we will deal with the properties of Laplace transform. हमें पता है Laplace transform का जो हमारा इक्वेशन है वो है if the Laplace transform of xt is xs then x of s equal to integration minus infinity to infinity x of t e to the minus st dt, and inverse Laplace transform is given by x of t equal to 1 by 2 pi j integration sigma minus j infinity to sigma plus j infinity x of s e to the power plus st ds. The properties of Laplace transform signifies the work of finding S-domain equivalent of a time domain function when different operations are performed on signal like time shifting, time scaling, time reversal, etc. These properties also signify the change in ROC because of these operations. तो हमें properties of Laplace transform से क्या मिलता है कि properties of Laplace transform हमें simplify करता है हमारा काम. क्या काम सिंप्लीफाई करता है? तो हमें जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है सिग्नल x ऑफ t का, उस सिग्नल के लैप्लास ट्रांसफॉर्म को जो मुझे x ऑफ t से x ऑफ s निकालना है वो फाइंडिंग में हमें सिंप्लीफिकेशन हो जाती है अगर हम ये प्रॉपर्टीज यूज करें जब उस सिग्नल पर कुछ ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग, टाइम रिवर्सल, all that operations when done on the signal, then the properties of Laplace transform will help us to simplify the problem. Okay, properties of Laplace transform are also used in applying application of analysis and characterization of LTI system. So हमें जो है लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के को कैरेक्टराइज करने के लिए एवं उसके एनालिसिस करने के लिए, उसको समझने के लिए भी प्रॉपर्टीज की जरूरत होती है. So let's move to the properties. Number 1, linearity of the Laplace transform. In the I think in the first video I have also already discussed about the linearity property. Still we are starting from the beginning. Okay, so let's start. Linearity property of Laplace transform. If x of x1 t Laplace transform is x1s with the region of convergence denoted by R1, and if x2t Laplace transform x2t is x2s with the region of convergence denoted by R2, then a into x1t plus b into x2t का Laplace transform हो जाएगा a into x1s plus b into x2s with the ROC containing R1 intersection R2. That is, अगर हमारे पास दो सिग्नल x1t है और x2t है जिसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म x1s एंड x2s है, तो हमारा जो अगर उस सिग्नल का हम लोग जो है लीनियर कॉम्बिनेशन ले लें तो लीनियर कॉम्बिनेशन इज ax1t प्लस bx2t, उसका जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो हमें मिलेगा ax1s प्लस bx2s और ROC जो होगा वो क्या होगा, कॉमन टू बोथ. ओके, R1 एंड R2 जो रीजन होगा, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फॉर x1 एंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ x2, दोनों का जो है इंटरसेक्शन, दैट इज कॉमन एरिया बिटवीन द टू सिग्नल्स. अब प्रूफ किया जाए सिग्नल को. हमारे पास में मान लो x1t एंड x2t दो सिग्नल है जिससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में दो सिग्नल का z ऑफ t इक्वल टू a इंटू x1 ऑफ t प्लस b इंटू x2 ऑफ t. So after taking Laplace transform, what we will get? We will get integration minus infinity to plus infinity ax1t plus bx2t into e to the minus st dt. That means a बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी x1t e to the power minus st dt प्लस अगेन फॉर दिस b बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी x2t e to the minus st dt. So this is representing x1s, that is Laplace transform of x1 of t, and this represents Laplace transform of x2 of t. Therefore what we can write, we will write as a into x1s plus b into x2s. तो ये हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन निकल गया. हमें देखना है ROC क्या हो रहा है. The resulting ROC is as larger as the region in common between the independent ROCs. मतलब हो रहा है जो हमारा जो समेशन ऑफ दोनों सिग्नल का जो समेशन है उसका जो ROC निकलेगा वो क्या होगा, द कॉमन एरिया बिटवीन द टू ROCs. ओके, लेकिन फिर अगर हमारे पास में ऐसा कोई सिग्नल है जिसमें जीरोस भी हैं, तो जीरो एंड पोल के कैंसिलेशन से जो है वो क्या हो सकता है, ROC
एक्सटेंड कर सकता है बियॉन्ड द कॉमन रीजन। इसलिए यहाँ लिखा गया है however there may be pole zero cancellation in linear combination which result in extending the ROC beyond the common area। ओके, तो कॉमन रीजन जो हमारा R1 इंटरसेक्शन R2 जो है वो कॉमन एरिया है, उस कॉमन एरिया से भी जो है वो ROC बढ़ सकता है। कब बढ़ सकता है? अगर हमारे पास में जो है लीनियर कॉम्बिनेशन में जीरो एंड पोल का जो है वो कैंसिलेशन हो जाए। तो ये हम एग्जांपल से समझते हैं कि क्या है ये। अदरवाइज फॉर जनरली अगर दो सिग्नल को हम लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं तो ROC जो है वो कॉमन ऑफ बोथ ऑफ ROC इज ऑफ कॉमन ऑफ बोथ ऑफ द सिग्नल्स। दोनों के सिग्नल का जो कॉमन ROC होगा वही उसका ROC होगा। लेकिन इसके कुछ अलग केसेस भी हो सकते हैं जो कि अब हम लोग देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लेते हैं कि हमारा सिग्नल जो है वो क्या है, x ऑफ टी इक्वल टू x1 ऑफ टी माइनस x2 ऑफ टी है। x1 ऑफ टी का जो है फूरियर ट्रांसफॉर्म जो है मान लेते हैं 1 बाई एस प्लस ए है, और x2 ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म x2 ऑफ एस है, जिसका कि हमारा रिजल्ट है 1 बाई एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2। तो यहाँ से हमें ROC क्या मिल जाएगा, रियल पार्ट ऑफ एस मस्ट बी ग्रेटर देन -1। यहाँ से जब हम इसको जीरो करेंगे एस प्लस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ एस मस्ट बी ग्रेटर देन -1। अगेन यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एस प्लस 1 ग्रेटर देन 0 एंड एस प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब है कि जो हमारे इस सिग्नल का जो ROC होगा वो दो पोल्स लोकेट हो रहे हैं, दो पोल्स लोकेट हो रहे हैं। एक हो रहा है ये पहले वाला सिग्नल का है कि x ऑफ -1 से जो है ROC शुरू हो रहा है टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस। अच्छा, और सिग्नल नंबर 2 का हमारा सिग्नल 2 था 1 बाई एस प्लस 1 बाई 1 बाई एस प्लस 2। इसका मतलब है कि एस प्लस 1 से हमें मिल रहा है कि रियल पार्ट ऑफ एस विल बी ग्रेटर देन -1, इसका मतलब है ये वाला पोर्शन। और दूसरा वाला मिल रहा है रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन -2, ये वाला पोर्शन। तो इन दोनों का जो दोनों के कॉम्बिनेशन का हमें ये, क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो दोनों का कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा कि दोनों में कॉमन कौन सा है। इसका मतलब है -2 से शुरू हुआ है और ये -1 से शुरू हुआ है। इसका मतलब इन दोनों अगर पोल का लोकेशन देखें इसमें हम देखेंगे कि ROC क्या हो रहा है, वो हमारा -2 से शुरू नहीं होगी, -2 तो -1 से कॉमन नहीं है, लेकिन -2 से जो शुरू हो रहा है वो -1 से जा करके अप टू जो है इन्फिनिटी तक जा रहा है, और -1 से शुरू हो रहा है वो -1 से जाकर अप टू इन्फिनिटी जा रहा है। इसका मतलब है कि हमारा ROC जो है वो शुरू हो गया -1 से, ना कि -2 से, क्योंकि कॉमन एरिया जो है वो -1 से शुरू हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि ROC के बीच में जो है कोई पोल नहीं रहता है। ROC में जो है ROC विल बी बाउंडेड विद पोल्स और इन्फिनिटी। तो ROC जो है के बीच में जो है जो हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है उसमें कोई पोल नहीं होगा। अगर -2 से शुरू कर देंगे तो पोल एक आ जाएगा -1, इसलिए -2 से जो है हमारा ROC शुरू नहीं होगा, इसका ROC शुरू हो जाएगा -1 से। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा दो सिग्नल है, ये है मेरा x1t, ये है x2t, दैट इज ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म x1s एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म x2s। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, x ऑफ s इक्वल टू x1 ऑफ s माइनस x2 ऑफ s इक्वल टू 1 बाई s प्लस 1 माइनस 1 बाई s प्लस 1 इंटू s प्लस 2। तो रिजल्ट मेरा क्या आया, 1 बाई s प्लस 2। इसका मतलब ये हो गया मेरा, अब जो मेरा ये जो रिजल्टेंट सिग्नल है उसके उसका ROC क्या है, रियल पार्ट ऑफ s ग्रेटर देन -2, रियल पार्ट ऑफ s ग्रेटर देन -2। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक पोल जो है वो ऊपर में हमें पता है कि जो हमारा जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो न्यूमेरेटर ऑफ s दैट n ऑफ s बाय d ऑफ s, तो n ऑफ s को जीरो करते हैं तो मुझे जीरोस मिलता है, n ऑफ जो है d ऑफ s को जीरो करते हैं तो पोल्स मिलता है। तो यहाँ पर हमारे पास में जीरो है -1 में, पोल है -1 में, और यहाँ पर जो है पोल है -2 में। तो जीरो एंड पोल जो है ये कैंसिल, ये जीरो एंड पोल कैंसिल हो जा रहा है, बच क्या रहा है, बस एक पोल बच रहा है जो कि -2 से शुरू हो रहा है। तो एक्चुअली जो है हमारा ROC जो है वो अगर देखें तो हमारा ROC इन दोनों को देख के लग रहा था, कॉम्बिनेशन देख करके इन दोनों को कॉम्बिनेशन देख के लग रहा था कि हमारा ROC कॉमन एरिया जो होगा वो क्या होगा, यहाँ -1 से शुरू हुआ है, यहाँ भी -1 से शुरू हुआ है, इसका मतलब कॉमन एरिया दोनों का -1 से शुरू होता। लेकिन क्योंकि एक पोल -1 में है और एक जीरो भी -1 में है, तो ये पोल और जीरो जो है कैंसिल हो जा रहा है, तो ऑब्वियसली बच क्या जा रहा है, 1 बाई s प्लस 2। इसका मतलब है पोल एट -2, तो हमारा ROC जो है वो एक्सटेंड कर गया -1 से -2। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन कि हमारा ROC बियॉन्ड जो है जो कॉमन एरिया था बिटवीन द R1 एंड R2 उसके भी आगे बढ़ जाएगा, इसीलिए हमारा ROC शुरू हो गया -2 से। ओके, सो दिस इज द linear combination. So the intersection
of ROC of x1s and x2s is real part of s greater than -1. However, since the ROC is always bounded by a pole or infinity, bounded by pole and infinity means ROC जो है वो ROC के बीच में कोई पोल या इन्फिनिटी नहीं रहेगा. ROC जो है वो पोल से बाउंडेड रहेगा, पोल से शुरू होगा लेकिन उसके बीच में कोई पोल या इन्फिनिटी नहीं रहेगा. For this example, ROC of x of s can be extended to the left to be bounded by pole at s-2. ROC मेरा एक्सटेंड कर गया, लेफ्ट की तरफ एक्सटेंड कर दिया, -1 से -2 में एक्सटेंड कर गया. ठीक है, क्यों एक्सटेंड किया? बिकॉज द जीरो पोल कैंसिलेशन एट s = -1. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, टाइम शिफ्टिंग. टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर मेरा लैप्लास ट्रांसफॉर्म पर x of t = x of s है, जिसका ROC जो है r है, तो अगर हम टाइम को शिफ्ट कर दें, दैट इज t = टाउ कर देते हैं, दैट इज x of t - टाउ का लैप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो हमारा जो है क्या आ जाएगा? हमारे पास में एक्सपोनेंशियली डिकेइंग सिग्नल हमारे पास में जो है मल्टीप्लाइड हो जाएगा विद द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x of t, दैट इज e⁻ s tau into x of s. जितना डिले किए हैं उतना ही जो है वो एक्सपोनेंशियल सिग्नल, एक डिकेइंग सिग्नल मुझे मिल जाएगा e⁻s tau, ना कि t, e⁻s tau x of s with ROC = r. ROC में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. See the proof. Laplace transform of x of t minus tau equal to integration -∞ plus infinity x of t minus tau e⁻st dt. Okay. So t minus tau को हमने p पकड़ लिया, तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब dt = dp हो जाएगा, dt = dp हो गया. And we can write t = p plus tau, we can write t = p plus tau. और इंटीग्रेशन जो है, अगर t जो है वो -∞ plus infinity शुरू होता है तो ऑब्वियसली p भी जो है -∞ से प्लस इन्फिनिटी ही होगा. तो हमारे पास में अगर इसको हम तोड़ दें e⁻sp इंटू e⁻s tau, तो e⁻s tau कांस्टेंट क्वांटिटी है, बाहर निकल गया. हमारे इंटीग्रेशन के अंदर क्या रह गया? इंटीग्रेशन -∞ टू प्लस इन्फिनिटी xp e⁻sp dp. ये क्या डिनोट कर रहा है? दिस इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x of s. तो हमारा रिजल्ट आ गया e⁻s tau x of s. तो क्योंकि जो है ये e⁻s tau जो है वो कोई पोल रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो जब भी हम जानते हैं कि ROC तभी चेंज होगा जब कोई हमें पोल अलग से मिल जाएगा, तभी जो ROC चेंज हो सकता है. As the product of x of s with e⁻s tau will not affect the poles of xs. पोल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. पोल्स अगर x of s का जो भी पोल होगा वो पोल जहां था वही रहेगा, क्योंकि हमने कांस्टेंट क्वांटिटी e⁻s tau से जो है वो क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है. ठीक है, तो ROC will not alter, ROC चेंज नहीं होगा. इसका मतलब टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में ROC चेंज नहीं हो रहा है, बस हमारा सिग्नल जो है जो जितना सा हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से जो है एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल जो है वो मल्टीप्लाई हो जा रहा है. नाउ शिफ्टिंग इन एस डोमेन. हमने अभी तक शिफ्टिंग किया था टी डोमेन में, अब हम शिफ्ट करेंगे एस डोमेन में. इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ xt = x of s with ROC = r, देन हम लोग क्या कर रहे हैं? x of t के साथ में एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं e⁻s0 t. हमने मल्टीप्लाई किया. अगर कर देते हैं, अगर टाइम डोमेन में अगर e⁻s0 t से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी वो एस डोमेन में क्या कर रहा है? वो शिफ्टिंग कर दे रहा है. कितना शिफ्ट कर रहा है? s = s0 में जो है वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म को शिफ्ट कर दे रहा है. x of s - s0 जो s में था वो s - s0 पे शिफ्ट हो गया. विथ ROC क्या हो जाएगा? ये r है और साथ में रियल पार्ट ऑफ s0 जो है वो ऐड हो जाएगा. नाउ सी द प्रूफ. Laplace transform of e⁻s0 t xt equal to integration -∞ to plus infinity e⁻s0 t x of t e⁻−st dt. तो इसका मतलब यहाँ से हम xt को यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन प्लस इन्फिनिटी xt e⁻s इंटू s-s0 t dt. तो ये हमारा दिख रहा है कि ये फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या है? x of s - s0 है. हम लोग जानते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ xt इक्वल टू क्या होता है? e⁻∞ xt e⁻st dt. तो t यहाँ पे क्या हो? यहाँ पर क्या हो गया है? यहाँ पर t के सामने क्या आ गया? s - s0. तो हमारा जो है वो टाइम एस डोमेन में शिफ्ट कर गया s - s0. तो अगर हम टाइम डोमेन में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं e⁻s0 से, तो फ्रीक्वेंसी तो एस डोमेन में जो है वो स्केल शिफ्ट कर जाता है x of s - s0. That is, the ROC associated with x of s - s0 is that of xs
शिफ्टेड बाय एस नॉट, तो जितना शिफ्ट कर गया उतना क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, इसलिए हमारा आरओसी नया आरओसी क्या हो गया, जो आरओसी था उसके साथ में जितना शिफ्टेड हुआ वो ऐड हो गया, ये हमारा आरओसी मिल गया। फॉर एग्जाम्पल अगर आरओसी हमारा जो है वो R1 और R2 के बीच में है, तो हमारा जो रिजल्टेंट आरओसी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, R1 प्लस रियल पार्ट ऑफ एस नॉट, यहाँ पर भी R2 प्लस रियल पार्ट ऑफ एस नॉट। ओके, सो वी विल गेट दिस। अगर एक स्पेशल केस देख लेते हैं, अगर हम लोग अगर एस नॉट का वैल्यू जी ओमेगा नॉट लिखते हैं, अगर एस नॉट का वैल्यू जी ओमेगा नॉट होता है, ओके, तो देन व्हाट विल हैपन, तब हो जाएगा e टू द पावर j ओमेगा नॉट t x ऑफ t लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ s माइनस j ओमेगा नॉट, क्योंकि यहाँ पर s नॉट जो है वो क्या है, इमेजिनरी फंक्शन है, इमेजिनरी पार्ट है, देयरफॉर आरओसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब रियल पार्ट आएगा तभी जो है वो आरओसी में फर्क पड़ेगा, इमेजिनरी पार्ट के लिए जो है आरओसी डिपेंड नहीं करता है। दिस इज ट्रू बिकॉज आरओसी डिपेंड्स ऑन रियल पार्ट ऑफ एस नॉट ऑन इमेजिनरी पार्ट, तो यहाँ पर एस नॉट का वैल्यू जो है वो क्या है, इमेजिनरी है, देयरफॉर आरओसी जो है आर से आर ही रह जाएगा। तो ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी के साथ में अगर एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो इस डोमेन में शिफ्ट कर जा रहा है एक्स ऑफ एस माइनस जे ओमेगा नॉट, लेकिन आरओसी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, आरओसी जैसे का तैसे ही रह जाएगा। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, टाइम स्केलिंग। टाइम में हमको जो है वो स्केलिंग करना है, मतलब हमको या तो एक्सपेंड करना है या क्या करना है, कंप्रेस करना है। तो लेट x of t Laplace transform x of t equal to x of s with ROC equal to r, then x of a of t equal to 1 by mod of a x of s by a with ROC r1 equal to a into r। इसको हमको प्रूफ करना है, तो मान लेते हैं सबसे पहले a को रियल मान लेते हैं, तो a जो है वो रियल है, दैट मीन्स a में भी पॉजिटिव a में भी नेगेटिव, तो मान लेते हैं सबसे पहले a जो है वो पॉजिटिव है। अगर a पॉजिटिव होता है तो x ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ at इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी x ऑफ at टू द माइनस st dt हो जाएगा। अब हम लोग इसको at को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं लैम्डा से, तो हमारा फिर a इंटू डी टी इक्वल टू डी लैम्डा हो जाएगा, तो हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ डी टी के बदले जो है हम लोग पुट कर देंगे डी लैम्डा बाई ए, डी लैम्डा बाई ए, और ए टी के बदले लैम्डा पुट कर देंगे, और हमारा जो है टी के बदले जो है बैठा देंगे लैम्डा बाई ए, तो हमारे पास से मॉडिफाइड ये इंटीग्रेशन हो गया कि 1 बाई ए इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एक्स लैम्डा ई टू द पावर माइनस एस बाई ए लैम्डा डी लैम्डा। तो ये जो हमारा इंटीग्रेशन है ये क्या डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है एक्स ऑफ एस बाई ए, क्योंकि लैम्डा के साथ में एस बाई ए मल्टीप्लाई है, तो अगर एस मल्टीप्लाई होता तो एक्स ऑफ एस होता है, यहाँ पर मल्टीप्लाइड है एस बाई ए, देयरफॉर इट विल बी द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स बाई ए। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया, जब ए ग्रेटर देन 0 है तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या रिजल्ट क्या आ गया, 1 बाई ए एक्स ऑफ एस बाई ए। अब हम लोग देखना है कि जब ए नेगेटिव होगा, जब ए नेगेटिव होगा इसका मतलब है लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ माइनस ए टी, इसको हम लोग जो है ठीक जैसे पहले की थे वैसे ही करेंगे, तो उसमें लैम्डा इक्वल टू माइनस ए टी पकड़ लिए, ए डी टी इक्वल टू माइनस डी लैम्डा हो गया, पुट कर दिए, हमारे पास में जो है वैल्यू आ गया माइनस 1 बाई ए एक्स ऑफ एस बाई माइनस ए। अब इन दोनों कंबाइन करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा वी गेट एक्स ऑफ ए टी इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 बाई मॉड ए, क्योंकि वो प्लस ए आ रहा है माइनस ए आ रहा है, एक्स ऑफ एस बाई मॉड ए, मतलब मैग्नीट्यूड ले लेते हैं ओनली, ओके, वी विल टेक ओनली द मैग्नीट्यूड एंड आरओसी विल बी, क्योंकि हमारा आरओसी क्या हो जाएगा, आरओसी R1 क्या हो जाएगा ए इंटू आर, ए से मल्टीप्लाई, क्योंकि एस बाई ए हो रहा है तो क्या हो जाएगा ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एस बाई ए मस्ट बी ग्रेटर देन 0, दैट विल therefore it will we will get s must be greater than 0 that is s must be greater than a, and from here we will get ROC जो हमारा जा रहा है वो क्या हो जा रहा है, a से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो हमारा ROC एक्सपेंड कर गया, a इंटू आर हो गया। See some examples, मान लेते हैं x of t इक्वल टू e टू द पावर bt ut है, और इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है 1 बाई s प्लस b है, तो उसका ROC क्या हो जाएगा, s मस्ट बी real part of s must, that is sigma must be greater than minus b, okay, representing the right sided signal, then 1 by mod a x of s by a equal to हो जाएगा 1 by mod a x of s by a plus b हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर b जो है वो क्या है, b जो है वो हमारा जो है वो क्या किए हैं b तक s हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है 1 by s plus b है,
तो हमारा एक्सटेंड कितना एक्सटेंड हो गया, तो हमारा जो नया आया हमारा वो आ गया 1 बाई लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ x प्लस बी होगा, दैट इज s बाई ए प्लस बी, 1 बाई मॉड ए इंटू 1 बाई s बाई ए प्लस बी। ROC क्या हो जाएगा, s बाई ए मस्ट बी ग्रेटर देन माइनस बी, दैट मीन्स रियल पार्ट ऑफ s मस्ट बी ग्रेटर देन, रियल पार्ट ऑफ s मस्ट बी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, a इंटू माइनस बी, रियल पार्ट ऑफ s मस्ट बी ग्रेटर देन a इंटू माइनस बी, और माइनस बी जो है ROC ऑफ क्या है, फर्स्ट सिग्नल है हमारा, इसका मतलब है R है, तो हमारा ROC हो गया R1 इक्वल टू A इंटू R। तो सी अगर मेरा x ऑफ s का जो है वो अगर हमारा ROC जो है वो R1 और R2 के बीच में अगर ROC है, तो वो जब हम लोग रिजल्टेंट सिग्नल निकालेंगे तो उसका ROC क्या होगा, एक्सपेंड कर जाएगा जब a ग्रेटर देन a होगा। तो a जैसे ग्रेटर देन a हो जाएगा तो ROC जो है एक्सपेंड कर जाएगा, मतलब a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R1 R2 जो है दोनों के साथ में a मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ROC हो जाएगा a R1 जो है वो राइट हैंड साइड में, a R2 लेफ्ट हैंड साइड में। जब हम लोग a को लेस देन -1 कर देंगे तो फिर क्या होगा, ROC एक्सपेंड तो करेगा लेकिन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, मतलब हमारा जो है a R1 जो है वो लेफ्ट साइड में चला जाएगा, a R2 जो है वो राइट साइड में चला जाएगा। तो ROC एक्सपेंड तो करेगा लेकिन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि पहले हमने a ग्रेटर देन 1 किए थे, यहाँ पर a लेस देन -1 किए हैं। सिमिलरली जब a 0 और 1 के बीच में होगा तो हमारा जो ROC कंप्रेस हो जाएगा, 0 और 1 के बीच में होगा तो ROC क्या हो जाएगा, कंप्रेस। यू कैन चेक बाय यूजिंग द फॉर्मूला एंड यूजिंग एग्जांपल। ओके, सो 0 और 1 के बीच में अगर होता है तो ROC क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा, ऑब्वियसली कंप्रेस हो जाएगा क्योंकि वो लेस देन इसका वैल्यू जो है लेस देन 1 है, कंप्रेस हो जाएगा। तो ये हमारा कंप्रेस वैल्यू क्या आ जाएगा, a R1 इंटू a R2, क्योंकि जब पहले हमने कहा था कि ग्रेटर देन 1 है तो का वैल्यू जो है 1 2 3 4 5 6 एनी नंबर विल बी देयर, तो r के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे हम कह रहे हैं कि a का वैल्यू जो है वो क्या है, लेस देन 1 है, तो इट विल बी 1/2 1/3 1/4, तो दैट व्हेन वी मल्टीप्लाई इट विद R1 obviously the result will be less, that is the ROC will compress। तो हमारा कंप्रेस कर गया, तो a R1 हो गया हमारा राइट साइड में, a R2 हो गया लेफ्ट साइड में, कंप्रेस हो गया। इसी रेंज को अगर उल्टा कर दें हम लोग, दैट इज -1 से 0 कर दें, तो ROC कंप्रेस्ड तो होगा लेकिन क्या हो जाएगा, हमारा ये जो है ये रिवर्स हो जाएगा, दैट इज a R1 चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में एंड a R2 चला जाएगा राइट हैंड साइड में। ओके, अगर a को हम लोग -1 कर दें, अगर a को -1 कर दें तो इट गिव्स राइज टू टाइम रिवर्सल, ठीक टाइम जो रिवर्स हो जाएगा, दैट मीन्स x ऑफ -t हो जाएगा x ऑफ -s, दैट इज ROC ऑफ R1 इक्वल टू -r हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, टाइम रिवर्सल हो जाएगा। तो हमारा जो है क्या हो जाएगा कि जस्ट हमारा R1 जो है वो -r हो जाएगा, तो हमारा रिजल्ट वही रहेगा, R1 जो है वो -r हो जाएगा। ओके, so this is all about time linearity property, then time shifting, then shifting in S domain and time scaling. In the next lecture I will go through the other properties of Laplace transform. Okay, enjoy lecture. Thank you. Please do like, comment, share and subscribe.